Today we are going to discuss about unbiased p-n junction. So before discussing unbiased junction, we have discussed in previous lectures that in case of p-type semiconductors, जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड माइनॉरिटी जो होंगे they will be in small concentration, they will be electrons, and here are the negative acceptor atoms because they accept the holes, and the neighboring in this acceptor atom will accept the hole, and by repeating this process the current is flowing through, by the flow of holes from but one acceptor atom to another acceptor atom. And in case of n type semiconductor, इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कौन से होंगे वो होंगे होल्स, मीन्स होल्स होंगे दे विल बी इन स्मॉल कंसंट्रेशन, एंड these positive are specifying your donor atoms because they donate the impurities, that is electrons, to your n-type semiconductors. So one thing is very important to be remembered here, that कि जो हमारे कंडक्शन बैंड में जो हमारे चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एंड चार्ज कैरियर होंगे हमारे बैलेंस बैंड में वो होंगे होल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल से जो हमारे चार्ज कैरियर वो होल से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे जब उसको एनर्जी देंगे या वोल्टेज देंगे। सो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, बैलेंस बैंड से, वहाँ के होल क्या हो गए, होल क्रिएट हो जाएंगे। देयरफॉर इन केस ऑफ बैलेंस बैंड चार्ज कैरियर्स आर होल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर going from valence band to conduction band, so leaving a vacancy there, that means there are majority charge carriers are holes there. So अगर हम इन दोनों को कॉल सीक कर दें, इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत इंस्ट्रक्शन फिनोमेना होगा, इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी-एन जंक्शन। सो इसके जो आसपास जो इसके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स होल्स, वो कहाँ हो जाएंगे, डिपॉजिट इसमें चले जाएंगे थोड़े से स्मॉल कंसंट्रेशन में एन टाइप में, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन होल की तरफ अट्रैक्ट होकर इस तरफ चले जाएंगे। सो मीन्स देर इज diffusion process is taking place. So we can say that when we hold the contact between the p and this n-type material, the holes in the electron in the p side, they goes to your n-type n side, and free electrons in the n-type goes to your p side. So then near the junction positive ions are uncovered here in this picture. So near the junction positive ions are uncovered on the p side, and negative ions are uncovered on the p side. So therefore there is a formation of diffusion of the opposite charges here. So thus सो अब क्या होगा, जब ये इस पे डिफ्यूज जाएंगे तो इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, दे विल बी अनकवर्ड ऑन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो अगर फर्दर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रैवल करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देर इज ऑलरेडी एन इलेक्ट्रॉन हेयर, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑलरेडी डिफ्यूजन ऑफ पॉजिटिव होल्स आर हेयर। सो ये वाले पॉजिटिव होल अगर इस तरफ आएंगे तो क्या होंगे, ये रिपेल होंगे इधर से, और सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन ये डोनर एटम या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे इस तरफ आएंगे तो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, रिपेल होंगे। सो देयरफॉर यू कैन से दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लेयर is taking place when we join these PNP semiconductor and semiconductor, and formation of, you can say, junction or formation of a layer is is here, and this layer is known as your depletion layer, and this depletion layer also serve as a barrier potential for these electron and these holes. So this width of this depletion region is known as depletion layer, and it is generally of the order of your this is generally of the order of your 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 6 meter, means micrometer की order की होगी, and this region has immobile ions which are electrically charged, is also called space charge region. The electric field between these donor and acceptor ions called a barrier, and the difference between the potential from one
one side of the barrier to the other side is referred at the this difference is referred as the your you can say that the height of the barrier. This height of this distance from this side to this side is referred as the height of this. जितने ज़्यादा ये विड्थ जाती बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारी बैरियर पोटेंशियल की हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. So this can you can say that this is the height of your barrier potential. So for germanium pn junction इसकी हाइट क्या होगी 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए क्या होगी 0.7 वोल्ट. So so from this diagram we also discussed in the previous lecture that in case of p-type junction, p-type material, your Fermi level is you below the so above shifts to the your valence band. That means you can say that Fermi level p-type semiconductor is above the valence band, and in case of n-type your Fermi level is very near to your conduction band. This is due to the fact that when we add the impurities to some particular material, so your Fermi level adjusts itself to prevent the charge neutrality, to preserve the charge neutrality. So therefore Fermi level is here adjusted accordingly, and this phenomena is very important in case of p-n junction because it serves as a your barrier potential for these majority and minority care chargers. So you can say that from this diagram that depletion region will be different for your particular semiconductors, and it will be of the order of 10 to the power 8 to 10 to the power 6 meter. That is, it is of a micrometer range for your these particular semiconductors. कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर हम पी एन जंक्शन जब अलग अलग होंगे, जब उनको ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, पी टाइप के केस में होगा फर्मी लेवल क्या होगा कंडक्शन बैंड के साथ होगा, और एन लेवल में क्या होगा फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के साथ होगा. एन लेवल में पी बैंड एन लेवल एन टाइप में कंडक्शन बैंड के साथ होगा, और पी टाइप में बैलेंस बैंड के साथ होगा फर्मी लेवल. बट जब हम इन दोनों जंक्शन को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को डिफ्यूज कर देते हैं साथ में, तो क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना विल हैपन देयर. सो दैट मीन्स जो हमारा फर्मी लेवल होगा पी एन जंक्शन के केस में वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बट जो हमारे कंडक्शन बैंड और वो बैलेंस बैंड क्या हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे पी एन जंक्शन के केस में. सो इन केस ऑफ p-n junction, so in on the p-type side the conduction band is shifted upward, and your conduction band is shifted downward to your Fermi level because ये Fermi level conduction band के साथ होगा. and in p-type case your Fermi level balance band थोड़ा सा ऊपर shift हो जाएगा, and because it is in this p-type case it is Fermi level is closer to your balance band. So that's why there is a shifting of band is taking place. So therefore Fermi level here attains a constant value. अब जब इस डायग्राम को हम बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे बैंड एजेस क्या हो रहे हैं, हमारे शिफ्ट हो रहे हैं. देयरफॉर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल को इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो दिस डिफरेंस between your valence band in p-type and n-type is represented as your depletion region, that is barrier depletion region, and the barrier potential can be interpreted from this difference because they are shifting. So this difference can be given as your height of your barrier potential. So अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, सो दिस एनर्जी ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज गिवन बाय द बिकॉज इसकी एनर्जी क्या पी टाइप की स्लाइटली हाई है कंडक्शन बैंड के केस में और बैलेंस बैंड के केस में. देयरफॉर दिस विल बी आइदर गिवन बाय योर एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप minus energy of conduction band of n type, or either it is given by energy of balance band of p type minus energy of balance band of n type. So this gives the energy of your barrier height, and so in this case we can also say that there are free
free electrons in p region, that is minority charges, and few holes in your n region. So the barrier helps these minority charges or carriers to drift along the junction. इस बैरियर की वजह से हम क्या होगा, जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो ड्रिफ्ट जंक्शन के अक्रॉस ड्रिफ्ट करेंगे, एंड ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे ये कॉन्स्टेंटली जनरेट होंगे बिकॉज ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, और यू कैन से ड्यू टू दिस बैरियर एनर्जी ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल, एंड बट इस केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हमारा सिर्फ पी एन जंक्शन क्या है, अनवाइज्ड है, यहाँ पे हमने इसको सर्किट के अराउंड कनेक्ट नहीं किया है. सो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या करेंगे, जंक्शन के अराउंड क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, एंड इनको क्या बैलेंस करेगा, इनको बैलेंस करेगा कि जो ये डिफ्यूजन हो रही है हमारी माइनॉरिटी कैरियर की वो बैलेंस करेगा. So therefore in this case no current is flowing because this is unbiased PN junction, means it is not connected across the circuit. So the biased PN junction. So the biasing of the PN junction is of two types. First is of a forward type and forward biased, and another is reverse biased. So when DC voltage applied to your P type and N type regions, there is change in the height of your barrier potential, or you can say junction barrier potential, and the PN junction is said to be biased. So if the positive terminal of the battery is connected to your P type terminal, and this negative terminal of the battery is to your N type region of your junction, so then this PN junction is said to be forward bias. मतलब बैटरी का पॉजिटिव में पी टाइप जंक्शन के साथ लगेगा और बैटरी कनेक्ट में एन टाइप जंक्शन के साथ लगेगा. सो उस केस में हम इसको पी जंक्शन को करेंगे, पी एन जंक्शन इज टू बी फॉरवर्ड बाइस. सो अगर इसका रिवर्स हो जाए, मतलब बैटरी का नेगेटिव दिस पॉजिटिव एस पी के साथ, पी टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन के साथ, एंड बैटरी का नेगेटिव दिस, और बैटरी का पॉजिटिव दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जंक्शन के साथ, देयरफॉर दिस पी एन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बाइस. सो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइस को स्टडी करते हैं. तो फॉरवर्ड बाइस में बैटरी का पॉजिटिव पी के साथ, बैटरी का नेगेटिव एन के साथ. सो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है दोनों केस में वो क्या करेंगे, बैटरी के उसको क्या करेगी, टर्मिनल रिपेल करेगा. तो उस केस में क्या होगा, so we can say that the positive and negative voltages of battery repel the holes and electrons, that is they are majority charge carrier in P and N respectively. So they get repelled by the terminal of the battery. So if you can say this B is the forward voltage, because forward bias, so this is known as forward voltage applied across this junction. So then the effective barrier potential is equal to B, this VB minus B, where this VB is the barrier potential in case of unbiased PN junction. सो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, पॉजिटिव वाले मेजॉरिटी चार्जेस इस तरफ चल जाएंगे और नेगेटिव वाले इस तरफ चल जाएंगे. तो क्या होगा उस केस में, जो हमारे यहाँ पे अनकवर्ड माइनॉरिटी कैरियर चार्जेस डिफ्यूज थे वो क्या हो जाएंगे, दे विल डिक्रीज, दे विल गेट्स डिक्रीजेस, बिकॉज ये इस तरफ चल जाएगा, ये नेगेटिव माइनॉरिटी वाला इस तरफ चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगी हमारी बैरियर पोटेंशियल की, वो कम हो जाएगी. विड्थ कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो इस साइड मेजॉरिटी चार्ज के होल्स हैं वो इस साइड चले जाएंगे और ये वाले इस साइड चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल गेट रिकम्बाइंड. सो देयरफॉर ड्यू टू दिस फॉरवर्ड बाइजिंग द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल and the width of this uncovered charges reduces by this diagram. यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी width रिड्यूस हो रही है और पोटेंशियल बैरियर का हाइट भी क्या हो रही है, वो भी रिड्यूस हो रही है. बिकॉज द बैरियर पोटेंशियल, ये जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है एट द जंक्शन, this offers a small resistance to the flow of majority charges from moving across the this depletion region, and if external voltage is sufficient to overcome this, if this external voltage is sufficient to overcome this barrier potential, or you can say that penetrate this barrier potential or this depletion region, so therefore these holes and electron penetrates this junction, holes इस तरह penetrate हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरह पेनिट्रेट हो जाएंगे, एंड दे विल गेट कंबाइंड विद ईच अदर. सो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन दैट ऑकर्स नियर दिस जंक्शन,
an electron from negative terminal and hole from positive terminal of the battery. They will enter this region and drift across the junction. Combine हो जाएंगे और they will drift across the junction. And also covalent bonds in this junction near the positive terminals of the battery, whereas hole drifts towards the p-n junction. So this process continues so long as external battery is connected to region. तो ये प्रोसेस कंबाइनिंग की मैंने पेनिट्रेशन ये इस तरह पेनिट्रेट हो जाएगा, इस तरह पेनिट्रेट हो जाएगा और कंबाइन हो जाएंगे. तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी इस पीएन जंक्शन में? जब तक ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज हम इस पर अप्लाई करते रहेंगे. एंड इट करंट विल फ्लो अक्रॉस द जंक्शन. दैट इज करंट इज नोन एज फॉरवर्ड वाइज करंट विल फ्लो अक्रॉस दिस जंक्शन. एंड इन दिस फॉरवर्ड वाइज केस में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी ड्यू टू योर मेजॉरिटी कैरियर्स. माइनॉरिटी कैरियर्स in this forward biasing does not play any part in this forward biasing. So and the reverse of this forward biasing will be the reverse bias of junction. इस केस में क्या होगा? बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होगा. तो उस केस में क्या होगा? अगर इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? होल सारे इस तरफ क्या हो जाएंगे? मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ मूव करेंगे. तो उस केस में क्या होगा? हमारा डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा? दैट विल गेट्स इंक्रीजेज. डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीजेज, मतलब बैरियर पोटेंशियल की हाइट क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी. तो उस केस में क्या होगा? देयर बी वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो अक्रॉस द जंक्शन. वो किसकी वजह से होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से. बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे माइनॉरिटी वाले. तो वेरी स्मॉल, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्मॉल है, इसमें भी बहुत स्मॉल है माइनॉरिटी कैरियर चार्जेस की. देयरफॉर करंट इन केस ऑफ रिवर्स बायस इज वेरी वेरी स्मॉल. दैट मीन्स रिवर्स बायस इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर फॉरवर्ड बायसिंग. जैसे कि हमने डिस्कस किया रिवर्स बायस के केस में क्या होगा? जो हमारा पी टाइप टर्मिनल है हमारा जंक्शन का वो नेगेटिव के साथ होगा बैटरी के, और पॉजिटिव वाला जो एन टाइप है वो किसके साथ होगा? पॉजिटिव के साथ होगा. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? द माइनॉरिटी चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and the electrons are attracted to your positive terminal of the battery. बीटा में क्या होगा? जो होल वाले होंगे मेजॉरिटी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो माइनॉरिटी वाले जो होंगे इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे? इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. सो दस और जो एन टाइम में क्या होगा? उसका वो भी उल्टा होगा. सो वी कैन से दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस योर डिप्लीशन रीजन गेटिंग इंक्रीज्ड. और डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हमारी बैरियर पोटेंशियल की हाइट भी क्या होगी? वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो इफ वी अप्लाइड दिस रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन द मॉडिफाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल विल बी दिस वी जो हमारा अनबाइज्ड की केस में था प्लस दिस रिवर्स बायस्ड वोल्टेज. बिकॉज क्या हो रहा है? रिवर्स बायस्ड के केस में हमारा डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा. तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हमारा बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो भी मॉडिफाई हो जाएगा एंड दैट विल आल्सो इंक्रीज. एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज ऑफ योर बैरियर पोटेंशियल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स इन p side region and free electrons in n side region, they are unable to cross this barrier potential. So if they are not able to cross the barrier potential, there is very small current will be there, because they are unable to cross. And means you can say also, in other words, you can say that this junction offers a very high resistance, so the flow of the current is almost stopped. बिकॉज मेजोरिटी कैरी चार्जेस सारे इधर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो जंक्शन में क्या होगा? कोई करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट नहीं होगा. बट माइनॉरिटी चार्जेस दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन, इसमें माइनॉरिटी चार्जेस क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होंगे? होल्स. एंड टाइम में क्या होंगे? होल्स. सो दे हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव बाइज्ड पी रीजन. इसमें ये नेगेटिव बाइज पी रीजन की तरफ चल जाएंगे इसके माइनॉरिटी चार्जेस, और इसके क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन पी साइड में वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे. सो दस ए रिवर्स करंट ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर still passes through this junction due to this minority charge carriers.
So thus we can say that the rate of penetration of minority charges depends upon the temperature, or you can say depends upon the your penetration और temperature के ऊपर depend करेगा. If temperature is fixed, the rate of generation of minority carriers will remains constant. So the current due to the flow of minority carriers, that is negative in this and positive in this case, will remain same whether the battery voltage is low or high. वोल्टेज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइनॉरिटी चार्जेस की केस में, कि फ्लो के केस में. यहाँ पर फर्क पड़ेगा हमारा सिर्फ टेम्परेचर के केस में. बट इफ योर रिवर्स बायस्ड इज मेड टू हाई, द करंट थ्रू दिस पीएन जंक्शन इंक्रीजेज रैपिडली. अगर किसी रिवर्स बायस वोल्टेज को हाई कर देंगे और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर इसको फिक्स कर देंगे, तो क्या होगा उस फिनोमेना के ऊपर हमारा करंट रिवर्स बायस करंट क्या होगा, एकदम से इंक्रीज होगा. दिस इज ड्यू टू योर breakdown mechanism, you can say avalanche mechanism. So thus we can say that the voltage at which the phenomena occurs means किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर जब करंट हमारा एब्रप्टली इंक्रीज होगा तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज. सो एट दिस वोल्टेज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन and the covalent bond in the crystal structure will decreases and the electron holes pair will be generated, so therefore current will increases. सो नॉर्मल एप्लीकेशन में हम इस रिवर्स बायस के केस में इसको क्या करते हैं, इस कंडीशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेक हुआ था, दिस विल रिटर्न्स टू नॉर्मल व्हेन द एक्सेस रिवर्स बायस इज रिमूव्ड. जब उस वोल्टेज को हम जो हाई किए तो उसको कम कर देंगे तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी नॉर्मल में आ जाएगा. सो पर ये है कि अगर ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, उस रिवर्स बायस वोल्टेज की हाई होने की वजह से अगर ओवर हीट हो गया, सो दैट विल नॉट बी द केस. दैट मीन्स योर हमारा पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉरवर्ड वाइजिंग एंड रिवर्स वाइजिंग. अगर हम इसका अगर फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग का अगर बी आई करेक्टरिस्टिक स्टडी करें पीएन जंक्शन की, अगर उसका ग्राफ प्लॉट करें, सो दैट विल बी ऑफ दिस टाइप. So these are the BI characteristics of PN junction. So this is the graph for your reverse bias condition. So this is reverse bias. So this is the graph for reverse bias condition. So therefore the voltage increases as the current increases as particular value abruptly. That is known as your breakdown voltage. This is due to the breaking of crystal structure. That means covalent bonds are ruptured by increasing the voltage in the reverse bias. That voltage is known as reverse bias breakdown voltage. So and the current in this case is very small because it is due to your minority charges. So reverse bias में current जो होगा हमारा reverse bias current बहुत small होगा, that will be in of the order of microampere. और ये किसकी वजह से होगा, that will be the flow of your minority charge carriers. And in case of your forward bias characteristics, your this is your known as your knee voltage, means at particular voltage current is increases abruptly, that is known as your knee voltage. This knee voltage is 0.7 for silicon and 0.3 for germanium. This knee voltage means voltage after which the current increases abruptly. So in case of forward bias, your forward current is of milliampere, that we have discussed in case of forward biased. So thus this is the nature of the graph in case of PN junction. This is in case of reverse bias and this is in case of your forward bias.